So today we are going to discuss about a very important topic, that is Google Ads keyword match types. So before understanding this topic, we have to understand what is keyword. So keyword is a word or a phrase on your website that matches the words and phrases that people are entering into search engines. So keywords क्या होते हैं, जो भी आपका यूज़र है वो अपने क्वेरी रेस करता है गूगल के सर्च इंजन पे, और उसके अकॉर्डिंग, उसकी क्वेरी के अकॉर्डिंग जो भी ऐड आपका मैच होता है वो गूगल उसको ट्रिगर करता है और उसकी सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ गूगल. एंड कीवर्ड रिसर्च प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर प्लानिंग अ कैंपेन. So we'll understand it further. So what are the tools which we can use for planning a campaign? So we'll cover three important tools. First is Answer the Public, another one is Ubersuggest, and then Keyword Planner. So we'll understand the first tool, Answer the Public. So we'll type a keyword here. So we are targeting for digital marketing. So we'll search for digital marketing. So ये टूल जो है ये आपको हेल्प करेगा कि उसके पॉसिबल रिलेटेड क्वेरीज क्या क्या हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, व्हेन डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टेड इन इंडिया. तो आप अपने जो SEO है या फिर आपका जो गूगल का आप ऐड प्लान कर रहे हैं उसमें ये टूल काफ़ी हेल्पफुल होता है. नाउ another ad tool is Ubersuggest. So we'll understand this tool as well. So basically this is the dashboard of Ubersuggest, and then you can search for you can plan for different, like select different languages, and then accordingly, basically this is a SEO tool, but we can also use this for planning our campaigns. So for example, if I'm searching for and according to like websites you can search for which are your competitor websites for that particular keyword, then according to the traffic and according to the keyword ideas you can search for make searches for that particular keyword. For example, we are targeting here digital marketing, so we'll type digital marketing. And then we'll search. So basically for this word the maximum search query is 2,46,000, and we have to pay a CPC of 99 rupees, and then paid difficulty is 38, and then SEO difficulty is 59. The related searches are digital marketing course, digital marketing, what is it, digital marketing is. So you can plan a list of keywords for which you want to raise make your campaign, and accordingly you can make a list and then plan your campaign. So now another important tool is Keyword Planner. So we'll understand this tool as well. So basically this is the inside of Google Keyword Planner. This is a very important tool, another important tool if you are planning for your ad campaigns or for your SEO. Digital marketing we will type here because we are targeting for this keyword. So as you can see, it is also targeting online advertising. Okay, so similar
कीवर्ड के अकॉर्डिंग भी आपको ये प्लान करने में हेल्प करेगा. यू कैन ऑल्सो सी broad keywords, inbound marketing campaigns, marketing strategy. So related similar keyword ideas you can plan according to this, and then it helps us to understand that for which keyword we have to it helps us in planning our bidding. So we have covered 3 important tools: Answer the Public, Uber Suggest, and then Keyword Planner. Now we'll try to understand that what are the keyword match types. So basically there are 4 type of keywords which when we are planning a campaign on Google. ये 4 टाइप के keywords अगर आप प्लान करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करता है ये. और बेसिकली जब भी हम कैंपेन प्लान करते हैं, बहुत सारे बिगनर्स ये गलती करते हैं कि वो ब्रॉड मैच कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हर जगह उनका जो ऐड है वो पॉप होने लगता है, एंड देन अल्टीमेट रिजल्ट इज़ वेस्टेज ऑफ लॉट ऑफ मनी. तो अगर हम इसी चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ ले तो हमारी ऐड को जब हम प्लान करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से हम प्लान कर सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ ब्रॉड मैच. तो ब्रॉड मैच क्या होता है? बेसिकली जब भी हम गूगल पे कोई पर्टिकुलर कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल this one, broad match. So what is it? So it includes misspelling, synonyms, related searches and other relevant variations. So यहाँ पे हमारी जो कैंपेन होती है वो काफ़ी ब्रॉड हम प्लान करते हैं. So for example, buy ladies hats, this keyword will also be triggered here. Okay, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी जो मिस स्पेलिंग्स होंगी वो भी ट्रिगर हो जाएंगी, देन सिनोनिम्स भी ट्रिगर हो जाएंगे. सो बेसिकली हमारी यहाँ पे जो टारगेटिंग होती है वो काफ़ी ब्रॉड होती है, राइट. द नेक्स्ट वन इज़ ब्रॉड मैच मॉडिफायर. सो विल इंक्लूड अ सिंबल ऑफ प्लस बिफोर आर कीवर्ड. फॉर एग्जांपल प्लस विमेंस हैट्स, प्लस हैट्स. तो यहाँ पे जब हम अपनी टारगेटिंग करते हैं तो वो जब गूगल टारगेटिंग करता है तो वो काफ़ी क्लोज वेरिएशन को लेता है बट सिनोनिम्स को नहीं लेता है. फॉर एग्जांपल मिसस्पेलिंग्स और समथिंग लाइक दैट. सो फॉर एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस हैट्स फॉर women. So here it is including related keyword. For example, women is included here. So women or women's, both keywords will be triggered, and then hats. तो यहाँ पे हम अपनी जब टारगेटिंग करते हैं तो ब्रॉड नहीं रहती, वो थोड़ी सी हम स्पेसिफिक कर देते हैं. देन फ्रेज मैच के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं. सो जब फ्रेज मैच को क्या होता है, तो फ्रेज मैच वो होते हैं जो काफ़ी क्लोज वेरिएशन को लेते हैं ऑफ दैट फ्रेज, राइट. सो यहाँ पे विमेन हैट्स हमने लिया है. सो विमेन हैट्स के रिलेटेड क्वेरीज होंगी, उसके काफ़ी क्लोज वेरिएशन ही आएंगे, उसके आसपास के वर्ड्स ही वो उनको ट्रिगर करेगा, क्लोज वेरिएशन को ही ट्रिगर करेगा, बस मिस स्पेलिंग्स हो गई या सिनोनिम्स को ट्रिगर नहीं करेगा, राइट. नाउ व्हाट इज़ एग्जैक्ट मैच? एग्जैक्ट मैच में हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो कॉलम है. वी हैव यूज्ड विमेंस हैट्स. सो एग्जैक्ट मैच जो होगा उसी को ट्रिगर करेगा, उसके आसपास के कीवर्ड्स हो गए या फिर सिनोनिम्स हो गए या क्लोज वेरिएशन हो गए उनको ट्रिगर नहीं करेगा. यहाँ पे हमारी टारगेटिंग काफ़ी एग्जैक्ट हो जाती है, राइट. सो नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कीवर्ड्स इन गूगल एड्स. सो ये क्यों ज़रूरी है? नेगेटिव कीवर्ड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जिस तरह से ये कीवर्ड्स यूज़ की इम्पोर्टेंस होती है, सिमिलर वे नेगेटिव कीवर्ड्स भी इम्पॉर्टेंट होता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट. अ टाइप ऑफ कीवर्ड दैट प्रिवेंट्स योर एड फ्रॉम बीइंग ट्रिगर्ड बाय अ सर्टेन वर्ड और फ्रेज.
Your ads aren't shown to anyone who is searching for that phrase. This is also known as negative match. तो यहाँ पे आपका जो कीवर्ड है वो प्रिवेंट होता है जिसको आप टारगेटिंग नहीं करते हैं, और काफ़ी हद तक आपको ये हेल्प करता है टू प्लान योर कैंपेन इन अ प्रॉपर वे. ओके, सो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ नेगेटिव कीवर्ड्स? सो इट हेल्प्स अस इन इम्प्रूविंग आवर CTR. आपका क्लिक थ्रू रेट है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. इम्प्रूव्स कन्वर्जन रेट, क्योंकि आप उन कीवर्ड्स पे टारगेटिंग नहीं कर रहे हो या प्रिवेंट कर रहे हो अपने ऐड को पॉप होने से. जिस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए आप टारगेटिंग करना चाहते हो वही कीवर्ड ट्रिगर होता है, अननेसेसरी कीवर्ड्स ट्रिगर नहीं होते हैं. देन इम्प्रूव्स योर क्वालिटी स्कोर. ऑब्वियसली जब आप अपनी वेबसाइट को उन कीवर्ड्स के लिए ट्रिगर नहीं कर रहे हो, उसके लिए ऐड ट्रिगर नहीं कर रहे हो जिसके लिए ज़रूरत नहीं है, सो ऑब्वियसली इट गिव्स एन इंडिकेशन टू गूगल दैट ओके दिस वेबसाइट और बिजनेस इज़ वेरी सीरियस फॉर इट्स ad campaign, and it helps us ultimately in improving our quality score. We have understood quality score in our previous lectures, that what is it. So we'll try to understand negative keyword. So here we have taken the keyword running shoes. Okay, तो जैसे हमने समझा कि यहाँ पर 4 टाइप के मैच टाइप होते हैं जब हम गूगल पे ऐड कैंपेन प्लान करते हैं. सिमिलरली नेगेटिव कीवर्ड्स में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. सो वी हैव यूज द वर्ड रनिंग शूज़. तो रनिंग शूज़ में जो हमने यूज़ करा है तो ब्लू टेनिस, यहाँ पे ब्रॉड मैच हमने लिया है, नेगेटिव ब्रॉड मैच. सो ब्लू टेनिस शूज़ वी हैव टेकन. तो ऐड किसको शो होगा? सो ब्लू टेनिस शूज़ उस पर तो ऐड शो होगा, रनिंग गियर्स पे भी ऐड शूज़ होगा, बट ब्लू रनिंग शूज़ पे ऐड शो नहीं होगा, शूज़ रनिंग पे भी ऐड शो नहीं होगा, राइट. देन सिमिलरली फ्रेज मैच में भी द सेम कॉन्सेप्ट इज being used. So wherever running shoes is coming, the ad will not pop there. And similarly in exact matches also, if running shoes is coming, the ad will not pop. But in under exact match running shoes, the exact keyword it is taking. So running shoes is a very close keyword, but it has taken. वाई? बिकॉज एग्जैक्ट मैच में एग्जैक्ट आपने जो रनिंग शूज़ है उसी को वो लेगा. आसपास के आपने अगर शूज़ रनिंग है या फिर रनिंग शूज़ है आसपास के हैं तो उसको वो ट्रिगर करेगा, इसको ट्रिगर नहीं करेगा. सो दिस इज़ इट इन टुडेज़ लेक्चर. द नेक्स्ट लेक्चर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस इट.